صاحب قبلہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اکبر بادشاہ کا جو فتنہ تھا، فتنہ دین الہی کہہ لیجیے اس کو، جی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو ختم کیا ہے، ان کی تحریک نے جو ختم کیا ہے، امام ربانی مجدد الف ثانی کا کیا کردار تھا؟ آپ اس کا بہترین انداز میں جواب دیں تاکہ عوام میں اچھا پیغام جائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی واقف اسرار قرآنی عالم مقطعات قرآنی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں الف ثانی کا مجدد بنا کر بھیجا۔ آپ کی پیدائش 971 ہجری میں ہوئی اور وفات 1034 ہجری میں۔ یہ آپ کا زمانہ ہے۔ اکبر تو ایسا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان میں جس نے مختلف مذاہب کو ملا کے ایک گویا کہ معجون مرکب تیار کیا، اس کو دین الہی کا نام دیا۔ اسلام کی جڑوں کو اس نے ختم کر دیا، اسلام کی جڑوں کو بالکل اکھیڑ کے رکھ دیا۔ شاعر اسلام پر پابندی عائد کر دی، مساجد پہ، نماز پہ، تلاوت قرآن پہ، اذان پر، سب پر پابندی ہوئی، گائے کشی پر پابندی ہوئی۔ تو یہ سارے حالات اس وقت تھے، اس وقت یہ فتنہ، اور وہ بھی ایک پوری گورنمنٹ کے زیر اثر اس فتنے کو پیدا کیا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ 1000 سال اس امت پر گزر گئے ہیں، اب گویا کہ اب نئی شریعت کی ضرورت ہے، اب شریعت اسلامیہ کافی نہیں۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں بڑے بڑے اس وقت کے جو صوفیہ خام تھے وہ بھی بہہ گئے تھے، اور جو علماء سو تھے اکبر کے ہمنوا بن گئے تھے۔ ملا مبارک، فیضی، ابوالفضل، یہ جیسے لوگ تھے، یہ لوگ اس کے ہمنوا تھے۔ پوری کتاب لکھوائی گئی، اور ایک پوری گورنمنٹ کے ذریعے سے اس فتنے کو پروموٹ کیا گیا، اور اس کے لیے تمام خزانے اور اسباب و وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ اس وقت آپ جانیں کہ ہندوستان کی جو سرحد تھی وہ فقط یہیں تک نہیں تھی جہاں پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کابل، زابل، افغانستان، یہ پورا علاقہ ہندوستان کے اندر شامل تھا، اور اس کی سرحدیں بہت وسیع تھیں۔ تو ہندوستان کا اس فتنے سے متاثر ہو جانا گویا کہ جنوبی وسطی ایشیا کا پورے طور پر متاثر ہو جانا تھا۔ تو اس کے اثرات پورے جنوبی وسطی ایشیا پر پڑ رہے تھے، اور یہ صرف جنوبی وسطی ایشیا پر ہی نہیں بلکہ عرب ممالک بھی اس سے متاثر ہو سکتے تھے۔ تو یہ ایک فتنہ سمجھیے ملک گیر ہی نہیں بلکہ ایک عالمگیر فتنہ بننے جا رہا تھا۔ اس کی نزاکت کو امام ربانی نے محسوس فرمایا، اور گو کہ اس وقت کے علماء سو اور صوفیہ خام اکبر کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن ایک ایسی شخصیت تھی ان میں جنہوں نے ان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا بلکہ آواز حق بلند کیا۔ یہاں تک کہ اکبر کا انتقال ہو گیا تو اکبر کے مشن کو پھر اس کے بیٹے نور الدین جہانگیر نے پوری کرنے کی کوشش کی۔ نور الدین جہانگیر بھی اپنی باپ کی روش پر تھا اور دین الہی کا پرچارک تھا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور چاہا کہ وہ بھی ان کے سامنے جھک جائیں، ان کو سجدہ تعظیمی بجا لائیں۔ امام ربانی جب گئے نور الدین جہانگیر کے دربار میں تو آپ نے نہ آداب شاہی بجا لائے، نہ ان کو جھک کر سلام کیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ مومنانہ شان کے ساتھ آپ کھڑے رہے۔ تو ان کے متبعین نے کہا، دیکھیے یہ کتنا بڑا متکبر ہے، جو اس نے نہ آپ کو سلام کیا نہ آپ کی عزت کی، اور اس کو ورغلایا گیا اتنا کہ اس نے آپ کو قلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔ تقریباً 2 سال اسیری کے ایام منتے ہیں۔ امام ربانی قلعہ گوالیار میں قید کیے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک زندگی کا ایک دوسرا سفر شروع ہوا۔ جب آپ کو 2 سال کے بعد قلعہ گوالیار سے بادشاہ نے نکالنے کا ارادہ کیا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ تم نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ تو نہیں، انہوں نے کہا کہ جو میرا جانشین ہے شیخ احمد اس کو تم نے قید کر کے رکھا ہے، ان کو فوراً رہا کرو ورنہ تمہاری ہلاکت ہے۔ بادشاہ کو خواب میں تہدید کی گئی، ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم نے شیخ احمد کو نہیں چھوڑا تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے جان کا خطرہ ہے۔ تو اس نے فوراً پروانہ جاری کیا آپ کی رہائی کا،
ग्वालियर के किले में इमाम रब्बानी ने फरमाया मेरी 7 शर्तें हैं, अगर ये शर्तें मानी जाएंगी तभी मैं जेल से बाहर आऊँगा, वरना बाहर नहीं आऊँगा। उन शर्तों में से चंद शर्तें ये थीं कि शायर इस्लाम को फिर से जारी किया जाए हिंदुस्तान में, जिन मसाजिद पर ताले लगाए गए उन मस्जिदों को खोला जाए, जो मसाजिद मुनहदम की गई उसकी दोबारा तामीर हो, और मसाजिद में उलमा मुअज़्ज़िनीन और इमामों का तकर्रुर हो, और जो पाबंदियाँ दीगर शायर इस्लाम पर लगाई गई सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो। जब आपने फरमाया कि ये तमाम चीज़ें नाफिज होंगी तब जाके शेख अहमद जेल से बाहर आएगा। बादशाह को चारों नाचार ये सारी शर्तें मंजूर करनी पड़ी। जब इमाम रब्बानी जेल से बाहर तशरीफ़ लाए तो गोया कि शरीयत इस्लामिया हिंदुस्तान में नाफिज हो चुकी थी। तो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ के इस्लाम की हिफाजत में। यही वजह है कि डॉक्टर इकबाल लाहौरी जो शायर मशरिक़ हैं और जिन्होंने मगरिब और मशरिक़ दोनों के फ़लसफ़े का भरपूर मुताला किया, दोनों की अक़वाम पर उन्होंने स्टडी की, जब वो सरहिंद शरीफ पहुँचते हैं तो इमाम रब्बानी की बारगाह में उन लफ्ज़ों के साथ खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन लफ्ज़ों के साथ और इस कदर जज्बे के साथ किसी बारगाह में उन्होंने खराज अक़ीदत पेश की हो। गो डॉक्टर इकबाल 2 शख्सियतों से ज़्यादा मुतासिर आते हैं, एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी और दूसरी शख्सियत इमाम रब्बानी की, लेकिन इमाम रब्बानी से उनका मुतासिर होना गालिब नज़र आता है। वो कहते हैं पहुँचा जो दरे शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो है ज़ेरे फ़लक मतलए अनवार, उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, और गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है वह गर्मी हराब, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगबा, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अगर इमाम रब्बानी ने बर वक्त अकबर के फितने का कला कमा न किया होता तो हिंदुस्तान से इस्लाम रुखसत हो जाता, उस हालत में इस्लाम नहीं होता जिस हालत में आज हम पा रहे हैं। और फिर आपने तजदीद का काम ऐसे किया कि हज़ारों की तादाद में आपने रिजाले मर्दान हक़ तैयार किए, रिजाले हक़ तैयार किए, रूहानी शख्सियात की तरबियत फरमाई, और एक एक मुल्क में अपने 40-40, 50-50 खुलफा को भेजा। चाइना की तरफ भेजा, रूस भेजा, उज़्बेकिस्तान भेजा, बुखारा भेजा, मुख्तलिफ़ ममालिक में आपने, और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों में तो थे ही, आपने अपने खुलफा की जमात तैयार करके रवाना किया। फिर उनके ज़रिए से तजदीद का काम लिया और तमाम बातिल रसूम को ख़त्म किया। सूफिया ख़ाम के अंदर जो गलतियाँ आ गई थी उसका आपने ख़ात्मा फरमाया, और वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के नज़रिए में आपने एक तजदीद फरमाई। वहदतुल वजूद जिसकी गलत तशरीह की जा रही थी, और उस वहदतुल वजूद की गलत तशरीह की बुनियाद पर लोग शिर्क की तरफ जा रहे थे, और हमाउस्त का जो नज़रिया था आपने उसके बिलमुकाबिल एक और नज़रिया पेश किया, हमाजुस्त, यानी तमाम चीज़ें उसकी तरफ से। एक वहदतुल वजूद के मुकाबले में एक कॉन्सेप्ट आपने वहदतुल शहूद का पेश फरमाया, और उस नज़रिए ने कबूलियत हासिल की। इमाम रब्बानी 1000 साल के मुजद्दिद हैं। अल्लाह ताला ये सुन्नत जारिया है कि हर 100 साल के आगाज़ में एक सदी का अख्ताम होता है, दूसरी सदी का आगाज़ होता है, तो एक ऐसी शख्सियत को मबऊस फरमाता है जो उसके दीन की तजदीद करता है। उसके लिए अल्फाज आए हैं, इन्नल्लाह यबअसु अला रासि कुल्लि मिआ सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह ताला हर सदी के आगाज़ पर एक शख्स को भेजता है जो उसके दीन की तजदीद करता है। इसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है, तो मुख्तलिफ़ तुरुक़ से ये हदीस मरवी है। तो हर 100 साल पर एक मुजद्दिद आता है, लेकिन जब इस उम्मत पर 1000 साल पूरे हो गए तो उम्मत का रिश्ता दीन से इंतहाई कमज़ोर हो गया, करीब इज़्मिहलाल था। अब 100 साल के मुजद्दिद की नहीं बल्कि 1000 साल के मुजद्दिद की ज़रूरत थी, जो 1000 साल के लिए दीन इस्लाम की तजदीद करे। जिस तरह गुज़श्ता ज़मानों में जो उम्मत पर 1000 साल का अरसा गुजर जाता तो उलुल अज़्म पैगम्बर की बेसत होती थी, फिर 1000 साल गुजरता था,
फिर उलुल अज़्म पैगम्बर की बेइज्जत होती। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनके 1000 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, फिर उनके 1000 साल के बाद तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, फिर उनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। इस तरह से उलुल अज़्म अंबिया की बेइज्जत का सिलसिला, रसूल और नबी तो हर ज़माने में आते रहे, लेकिन उलुल अज़्म पैगम्बर कभी कभी आते रहे। इसी तरीके से अब इस उम्मत में नबी नहीं पैदा होंगे, नबी नहीं आएंगे, लेकिन कार नबुव्वत चलता रहेगा। अंबिया किराम के काम को करने के लिए हर सदी में मुजद्दिद तो आते रहेंगे, लेकिन हर 1000 साल पर एक ऐसा मुजद्दिद आएगा जो उलुल अज़्म होगा, और वो 1000 साल के उलुल अज़्म नबी के मुताबअत में उनके तरीक़े पर चलते हुए वो सुन्नत को और दीन को ताज़ा फरमाएगा। तो और एक बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि मुजद्दिद हर शख्स नहीं बन सकता। कोई शख्स इबादत व रियाज़त और मुजाहदे से चाहे कि हम मुजद्दिद के मकाम पर पहुँच जाएँ, रियाज़त के मकाम पर पहुँच जाएँ, तो ये इम्पॉसिबल है। ये मिन जानिबिल्लाह इसका इंतखाब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके लिए बैसत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इन्नल्लाह यबअसु अला रासि कुल्लि मिन सना। बैसत कहते हैं अपॉइंटमेंट को, तकर्रुरी को। इसी तरह से अंबिया के लिए फरमाया इन वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। नबी के लिए भी बअस का लफ्ज़ आया है और मुजद्दिद के लिए भी यबअसु का लफ्ज़ आया है। तो बैसत अपॉइंटमेंट और तकर्रुरी को कहते हैं, ये मिन जानिबिल्लाह उसका इंतखाब होता है। मुजद्दिद के मिजाज में वो शिद्दत व तसल्लुब डाल दी जाती है कि ज़माने के हवादिस और ज़माने की नेरंगियाँ उसको मुतासिर न कर सकें। इमाम रब्बानी की शान यही है कि आपने न फ़क़त एक पहलू दीन के एक पहलू की तजदीद फरमाई, बल्कि दीन के सारे पहलुओं की तजदीद फरमाई। अक़ीदे रिसालत की, अक़ीदे तौहीद है, रिसालत है, बादल मौत है, और उसके बाद जितने भी नज़रियात हैं उन सब की, हत्ता के कमालात रूहानिया की भी तजदीद फरमाई। बहुत सारे ऐसे कमालात वो थे जो अगलों पर ज़ाहिर नहीं हुए थे, वो आप पर ज़ाहिर किए गए और आपने उन कमालात की भी तजदीद फरमाई। तो आप मुजद्दिद तरीक़े नक्शबंदिया भी हैं और मुजद्दिद दीन इस्लाम भी हैं। इमाम रब्बानी के बाद फिर उनके मिशन को ख्वाजा मासूम कमाल सरहिंदी ने सरअंजाम दिया, और मुहय्यिस सुन्ना औरंगज़ेब आलमगीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपने शरीयत इस्लामिया को हिंदुस्तान में रवाज दिया और दीन इस्लाम को आपसे तक़वियत पहुँची। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि औरंगज़ेब आलमगीर की तरबियत किन हाथों में हुई है, औरंगज़ेब आलमगीर के पीर व मुर्शिद कौन हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ने अगर इस्लाम की इशाअत का फरीज़ा सरअंजाम दिया हिंदुस्तान में, तो उनसे बड़ा कमाल उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा मासूम कमाल सरहिंदी का है, क्योंकि ख्वाजा मासूम कमाल सरहिंदी इमाम रब्बानी के फ़र्जंदे सालिस हैं। उन्होंने ही औरंगज़ेब आलमगीर की तरबियत फरमाई है। 1048 हिजरी में औरंगज़ेब आलमगीर सरहिंद आते हैं और वो मुरीद होते हैं ख्वाजा मासूम कमाल रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़बर, और ज़माने शहज़ादगी 20 साल ज़माना शहज़ादगी गुज़रता है। 1068 हिजरी में फिर वो तख्ते शाही मुतकमिल होते हैं। 20 साल तक कंटिन्यू उनकी तरबियत हुई, और ख्वाजा मासूम कमाल ने अपने मुमताज़ उलमा खुलफ़ा को क़िले मुअल्ला भेजा इनको पढ़ाने के लिए, और न सिर्फ खुलफ़ा को भेजा बल्कि अपने फ़र्जंद हज़रत ख्वाजा सैफुद्दीन सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को क़िले मुअल्ला में भेज दिया कि उनकी रूहानी तरबियत करें, औरंगज़ेब आलमगीर को सलूक के मदारिस तय कराएँ, औरंगज़ेब आलमगीर को दीनी मिजाज में ढालने में और उन रूहानियत की तरफ लाने में सबसे बड़ा कमाल हज़रत ख्वाजा मासूम सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम ख्वाजा सैफुद्दीन सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का है, और ये इमाम रब्बानी ही का चयन है। तो यूँ कह सकते हैं कि इमाम रब्बानी के ज़रिए से मुग़लिया सलातीन की जो तरबियत हुई वो किसी और सिलसिले के मशाइख के ज़रिए से नहीं हो सकी। अल्लाह ताला ने ये हिस्सा सिलसिले नक्शबंदिया को अता फ़रमाया। बस ये मुख्तसर सा जवाब है इसका। जज़ाकुमुल्लाह।